ICSC Mathematics Class 10th Chapter 14 Exercise 14A Question number 15. In figure it is given that O is the center of the circle and AOC is 130 degree. Find ABC. Find ABC. You see, O is the center of the circle and AOC is 130 degree. It is given. So 130 degree. So we can find out the reflex angle, that will be equal to 230. सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इसको 360 में से 360 डिग्री में से 130 माइनस कीजिए, 230 आएगा. दैट विल बी द रिफ्लेक्स एंगल. इस रिफ्लेक्स एंगल का हाफ कीजिए, देन यू विल गेट एंगल ए बी सी. हमारे को क्या बताना है, एंगल ए बी सी कितने डिग्री का होगा. सो ए बी सी विल बी इक्वल टू 230 डिवाइडेड बाई 2. दैट विल बी इक्वल, बिकॉज द एंगल जो सब्टेंड हुआ है इस सेगमेंट के द्वारा, मेजर सेगमेंट के द्वारा, दैट इज 230 डिग्री. So in order to find out 230 degree, first of all what you do, that you subtract 130 from 360, you will get 230 degree. So now we divide 230 in order to find the angle subtended by the same segment on the circumference. That is 115 degree, and it is the answer. Now come to the question number 16. In figure, AB is the diameter of the circle. If BCD is 140 degree, find DBA. देखिए, AB is diameter, means it is passing through the center. और क्या दिया हुआ है, BCD is 140 degree. It is given. So now you see, ABCD is a cyclic quadrilateral because all the vertices of this quadrilateral lie on the circle. Therefore, it is a cyclic quadrilateral. So it is 140 degree. So just angle opposite to it, that will be 180 minus 140. That will be equal to 40 degree. Or angle subtended by this semicircle at the point D, means semicircle के अंदर, that is 90 degree. We have to find angle DBA. We have to find the angle DBA. So in a right angle triangle, ADB is a right angle triangle. So this is 90 degree. So angle A and angle B, sum of these two will be equal to 90 degree. So once you got the 40 degree, so just subtract 40 degree from 90 degree, you will get 50 degrees. 90 minus 40. DBA is equal to 90 minus 40, that is 50 degree. See, I have written here, BCD is 140 degree given. ABCD is a cyclic quadrilateral. This implies that the angle BAD is equal to 180 minus 140, that is 40 degree. So DBA will be equal to 90 minus 40, that is 50 degree. And this is the answer of the question number 16. Now proceed to the question number 17. In figure, O is the center of the circle. ABD is a straight line. ABD is a straight line. And CBD is 65 degree. Find first AEC, second AOC, marked as X degrees. देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 17 में. देखिए,
ये एंगल दिया हुआ है, इट इज गिवन दैट इट इज ए 65 डिग्री. सो इंटीरियर अपोजिट इसी फर्स्ट ऑफ ऑल ABCE is a cyclic quadrilateral. So the angle which is given already, that is CBD. CBD is 65 degree. So just you go inside, means inner side, interior opposite angle. Interior opposite angle. Once you enter it and opposite to it, this is 60. So angle E will be equal to 65 degree. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो एंगल होता है उसका एक्सटीरियर एंगल उसके अपोजिट के एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है. सो एंगल E will be equal to CBD. So now we have got the CBD, that is 65 degree. हमारे को बताना क्या है, हमारे को रिफ्लेक्स एंगल बताना है, ये एंगल ये. तो 65 ये हो गया. देखिए AEC इज इक्वल टू CBD. सो ABC जस्ट सब्ट्रैक्ट ABC सब्ट्रैक्ट किया हमने तो कितना आ जाएगा 115. 180 में से 65 माइनस कीजिए तो 115 आएगा. अब इसका जो जस्ट डबल रिफ्लेक्स एंगल होगा, जस्ट डबल 115 आ गया, इसका जस्ट डबल 230 होगा. देखिए रिफ्लेक्स एंगल AOC that will be equal to twice of 115 means 115 का ट्वाइस ले लीजिए 230 डिग्री. तो आपको दो आंसर मिल गया. आपको एक मिल गया AEC जो पूछा हुआ था, दूसरा क्वेश्चन पूछा हुआ था AOC. X जहाँ पर लिखा हुआ है फिगर में दिया हुआ है X मीन्स रिफ्लेक्स एंगल, ये वाला एंगल नहीं बताना है. सो दैट विल बी इक्वल टू 230 डिग्री. द क्वेश्चन नंबर 17 is completed now. Now proceed to the question number 18. In figure, the diagonal of a cyclic quadrilateral ABCD intersect in P and the area of the triangle APB is 24 square centimeter. If AB is equal to 8 centimeter and CD is equal to 5 centimeter, calculate the area of CPD. Calculate the area of CPD. अब देखिए यहाँ पर हमारे को एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है ABCD, जिसमें एक साइड AB जो है वो 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है और DC का साइड जो दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर. हमारे को इसका एरिया निकालना है, CPD का एरिया निकालना है. फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए, पहले इस सेगमेंट के द्वारा AD सेगमेंट के द्वारा जो एंगल बन रहा है वो B पर बन रहा है. देखिए मैंने डबल आर्क के द्वारा दिखाया है यहाँ पर, और एक दूसरा एंगल बन रहा है यहाँ पर C पर डबल आर्क के द्वारा. मैंने दोनों एंगल इक्वल होगा because this angle and this angle will be equal because they are the angle in the same segment. सेगमेंट क्या है AD. उसी तरह से इधर आ जाइए, इस सेगमेंट को देखिए मीन्स BC और को देखिए इस सेगमेंट को. तो इसके द्वारा जो एंगल बना हुआ है, द एंगल सबटेंडेड बाय दिस सेगमेंट एट द सर्कमफ्रेंस is denoted by a dot, means CDB and CAB. These two angles are equal. Similarly, if you take this side and this side, again you will find that you see this side, you will find this angle and this angle.
सिंगल आर्क के द्वारा मैंने रिप्रेजेंट किया है। अगर इस आर्क को लेते हैं और इस सेगमेंट को लेते हैं ए बी, तो आपका क्रॉस से जो एंगल क्रॉस करके दिखाया है वो इक्वल होगा, बिकॉज एंगल इन द सेम सेगमेंट। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू सी द ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल डी पी सी। हम देखते हैं कि दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट सिमिलर क्यों हैं। देखिए ये एंगल जो डॉट से दिखाया इसके इक्वल है, ये डबल आर्क के से द्वारा रिप्रेजेंट किया है, इधर इक्वल है, और ये वाला जो बीच वाला एंगल है मिडिल एंगल, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। देयरफॉर दिस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय एंगल axiom of similarity. Once we have proved that these two triangles are similar, then there is a relation between the area and the side. You can see the area of APB upon area of DPC will be equal to the square of the corresponding side. Equal to the square of the corresponding side. अब देखिए यहाँ पर AP, फर्स्ट टू लेटर ले लीजिए इसका AP, और यहाँ पर नीचे लीजिए DP। सो AP कितना है 8 सेंटीमीटर, DP कितना है 5 सेंटीमीटर। इट इज गिवन ऑलरेडी। सो 8 स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर। एरिया ऑफ APB इज गिवन, दैट इज 24 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल DPC, एरिया ऑफ ट्राइंगल DPC विल बी इक्वल टू 24 इंटू 25, ये 25 हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, डिवाइडेड बाई 8 इंटू 8। सो 8 3 जा 24 और 25 3 जा 75, 75 बाई 8, दैट इज 9 and 3 by 8 centimeter square. And this is the answer of question number 18. Now proceed to the question number 19. In figure, O is the center of the circle. O is the center of the circle. If BAD is 30 degree, find the value of PQR. अब देखिए यहाँ पर ये एंगल P है, इधर Q है और ये R है। अब देखिए इस सेगमेंट के द्वारा, कौन सा सेगमेंट, BCD सेगमेंट, एंगल सबटेंडेड on the circumference that is at A is 30 degree, it is given. So angle R will be also 30 degree. Now the angle subtended by BD segment on the center or at the center, that is Q. So it should be double of R or double of A. So 30 into 2, that is 60 degree. So Q will be equal to 60 degree. देखिए R is equal to 30 degree, angles in the same segment. ABCD is a cyclic quadrilateral. ABCD is a cyclic quadrilateral. ABCD 4 पॉइंट मिल गया, 1 2 3 4। सो ABCD is a cyclic quadrilateral. So angle P plus 30 degree, angle P plus 30 degree should be equal to 180 degree. So P plus 30 means 180. So P is equal to 180 minus 30, that is 150 degree. So the value of P will be 150 degree. Q is equal to 2 into 30, that is 60 degree. So there are 3 answers, 1 2 3. These are the 3 answers of the question number 19. Now proceed to the question number 20. In figure, if BAD is 65 degree and ABD is 70 degree, ABD is 70 degree
and BDC is 45 degree. Calculate first BCD and second ADB and show that AC is a diameter. We have to prove it also that हमारे को वर्कआउट करना है क्या, प्रूव भी करना है कि AC जो है इट इज ए डायामीटर. नाउ सी हियर BAD plus BCD should be equal to 180 डिग्री. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है. अब BCD जो है BCD 180 माइनस 65, 180 BCD जो एंगल निकलेगा दैट विल बी 180 माइनस 65 दैट इज इक्वल टू 115 डिग्री. मीन्स टोटल BCD विल बी इक्वल टू 115 डिग्री. नाउ अभी यहाँ पर ध्यान दीजिए जरा, मैंने कुछ क्रॉस किया हुआ है, ऐसे लाइन डैश डैश किया हुआ है. मीन्स AD आर्क, AD सेगमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं बाहर को निकाला है ऐसे क्रॉस, और AB को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं अंदर के तरफ किया है. सो एंगल सबटेंडेड बाय AD, here it is given 70 degree, so it will be also 70 because these are the angles subtended by the same segment. So it will be 70 also, it will be 70. अभी हमने वर्कआउट क्या किया, BCD कितना है 115 डिग्री, और उस 115 में से अगर हम 70 डिग्री माइनस कर देंगे तो हमारे को क्या मिलेगा, BCA मिलेगा आपको. अभी देखिए ADB और ADB और ACD. तो ACD हमने निकाला था कितना, 115 में से 70 माइनस किया दैट इज 45 डिग्री. ये 45 हो गया, तो ये भी 45 होगा. क्यों, सेगमेंट देखिए, AB सेगमेंट के द्वारा जो एंगल बना हुआ है यहाँ पर C पर नीचे वाला, ये 45 आया, क्योंकि 115 में से 70 डिग्री माइनस कर दीजिए तो आपको कितना मिलेगा, 45 डिग्री. नाउ ADC विल बी ध्यान दीजिए, ADC हमने अभी वर्कआउट किया क्या, ADB निकाला तो 45 है. अगर हम ADC निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 45 और 45 90 हो गया. इसका मतलब ये एंगल कौन सा, ADC एंगल इज द एंगल सबटेंडेड बाय द सेमी सर्किल ऑन द सर्कमफ्रेंस. हेंस दैट इज AC is a diameter, that is why it is a semicircle, and hence it proved that the AC is diameter, the angle subtended by the diameter on one side of a circle is equal to 90 degree, and hence we have proved that it is 90 degree. So AC is the diameter QED, quad erect demonstrandum. यही हमारे को शो करना था. ये आंसर हो गया आपका. देखिए एक आंसर ये इधर, और ये प्रूव कर दिया हमने, ये AC ये होगा. नाउ प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 21. In figure, AB is the diameter of the circle whose center is O, given that angle ECD and EDC is 32 degree. दो एंगल इक्वल हैं. देखिए ECD
ECD is equal to EDC. EDC, that is 32 degree. Calculate CEF and COF. CEF and COF. देखिए यहाँ पर पहले मैंने इसको इस सेगमेंट के द्वारा जो एंगल, पहले तो यहाँ पर देखिए, पहले ECD 32 दिया हुआ है, ये दिया हुआ 32. देखिए फर्स्ट एंगल CEF हमारे को वर्कआउट करना है, निकालना है. CEF ये एंगल निकालना हमारे को, और दैट विल बी इक्वल टू, अब देखिए यहाँ से इस ट्राइंगल में CDE और CED एक ट्राइंगल बन रहा है छोटा सा. CED इस ट्राइंगल का CEF जो है एक्सटीरियर एंगल है. CEF क्या है? एक्सटीरियर एंगल है. सो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स. सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल इस ट्राइंगल के अंदर देखिए आप, CED में ये भी 32 है, ये भी 32 है. सो 32 प्लस 32, आई हैव रिटन हियर 32 प्लस 32, दैट इज 64. तो ये हो गया आपका CEF. CEF इज ए एक्सटीरियर एंगल. फॉर विच ट्राइंगल? Triangle is CED. CED is the triangle and CEF is a exterior angle. Hence, it will be equal to the sum of the interior opposite angle. So 32 plus 32, that is 64. I have written here, and it is one of the answer. Now proceed to the COF. We have to find out COF. अब देखिए यहाँ पर ये एंगल इस आर्क के द्वारा COF और CDF और COF, ये दोनों एंगल जो है द सेम सेगमेंट के द्वारा है. सेगमेंट है कौन सा? CF सेगमेंट. CF सेगमेंट के द्वारा दो एंगल बने हैं, एक सेंटर पर, एक सरकमफ्रेंस पर. जो D पॉइंट है सरकमफ्रेंस पर है, और D पर कितना डिग्री का एंगल है? 32 डिग्री है. अब देखिए पहले CF सेगमेंट के द्वारा जो सर्किल के ऊपर बना हुआ है वो 32 डिग्री है, एंड द सेम सेगमेंट के द्वारा सेंटर पर जो एंगल होगा दैट विल बी द डबल ऑफ इट. दैट विल बी द डबल ऑफ इट. देखिए यहाँ पर COF इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल CDF. CDF कितना है? 32 डिग्री. सो 2 इंटू 32, दैट इज 64. सो वी हैव वर्कड आउट द COF इज 64 डिग्री एंड CEF इज आल्सो, ये भी 34 है, ये भी 34 है. अब सॉरी 64 दोनों, ये भी 64 है, ये भी 64 है. नाउ प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 22. In figure, ABCD is a cyclic quadrilateral in which DAC is 27 degree, DAC is 27 degree, DBA is 50 degree, ADB is 33 degree. Calculate DBC, DCB and CAB. हमें 3 एंगल निकालने हैं, DBC, DCB एंड CAB. पहले देखिए क्या क्या दिया हुआ है. एक तो ये 33 दिया हुआ है, एक 27 दिया हुआ है, और ये 50 दिया हुआ है. 3 एंगल दिए हुए हैं. अब देखिए इसके लिए मैंने सेगमेंट DC लिया. पहले देखिए आप, DC सेगमेंट के द्वारा जो सरकमफ्रेंस पर एंगल बना है ये 27 है, और दूसरा एंगल इधर बन रहा है
देखिए यहाँ से एक लाइन लीजिए ऐसे, ये दोनों एंगल इक्वल होगा बिकॉज एंगल इन द सेम सेगमेंट, और वो सेगमेंट कौन सा होगा? डीसी सेगमेंट। अब आ जाइए आप इसको देखिए, कौन सा सेगमेंट? बीसी सेगमेंट, जिसको मैंने डॉटेड छोटे छोटे डॉट से करके दिखाया हुआ है। इस एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने इसके द्वारा कौन सा एंगल बना हुआ? देखिए ये वाला एंगल, और यहां से लिए एक ये एंगल। अब सबसे साथ जब हमारे को पता चल गया ये 27 और 50 डिग्री है, अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी है, तो ये टोटल देखिए 50 + 27 दैट इज 77। जैसे 77 पता चल गया तो हम क्या करेंगे? इसके अपोजिट वाले एंगल को देखेंगे। बी के अपोजिट में क्या है? डी है, और ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। सो 180 - 77 दैट इज 133। 133 ये हो जाएगा। जैसे ही 133 और इसमें से 33 ये है, तो आपको कौन सा मिला? बी डी सी कितना डिग्री का मिल गया? 100 डिग्री का मिल जाएगा। सॉरी 180 में 77 माइनस करेंगे, 180 में से 77 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा? 103। 103 दैट इज अपोजिट ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सो बी डी सी, ध्यान दीजिए, बी डी सी विल बी इक्वल टू 103 - 33। 103 - 33 दैट इज 70 डिग्री। सो ये एंगल आपका 70 आ जाएगा। कौन सा? बी डी सी। BDC will be 70 degree. Now BAC will be also 70 degree. BAC and BDC will be equal to 70 degree because the angle in the same segment. देखिए ये सेगमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने लिखा है, सॉरी डॉट बनाया हुआ है, दैट इज BC। BC के द्वारा जो एंगल इधर बना है BDC पर, दैट इज कितना है? 70 डिग्री आया है। वर्कआउट किया जो पहले तो यहाँ पर हमने इसको सम कर लिया, 50 + 27 दैट इज 77। 77 100 में से माइनस किया, 180 में से माइनस किया, कितना आ गया? 103। 103 में से 33 माइनस किया तो ये 70 आ गया। ये 70 हो गया, ये 70 हो गया। तो अभी देखिए यहाँ पर DCB will be equal to 180 - 97। पहले तो देखिए BAD निकाला था, BAD इज इक्वल टू 27 + 70। यहाँ पर ये 70 आ गया और 27 दोनों को प्लस किया। 70 कहाँ से निकाला था हमने? BDC, ये 70 आया था, ये भी 70 हो जाएगा। देखिए ये सेम, तो हमने BAD टोटल एंगल लिया। BAD निकालने के लिए हमने क्या किया? 27 + 70 दैट इज 97। तो DCB जो होगा, DCB बड़ा सा एंगल निकालना है, तो 180 - 97, 180 माइनस ये तो टोटल कितना आ गया? 97। सो 180 में से 97 माइनस कर दीजिए तो आपको क्या मिलेगा? BCD। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में सम ऑफ द अपोजिट एंगल इज equal to 180 degree, or you can say supplementary. They are the supplementary to each other. So here the DCB is equal to 180 - 97 that is 83 degree. So opposite angles of the cyclic quadrilateral. So this is the answer of that. Now second one, third part, that is CAB is equal to
BDC that is 70 degree already proved है हमारा, that is 70 degree. Angles in the same segment as above हमने प्रूव किया था, 70 डिग्री आया था यहाँ पर BDC, वही एंगल यहाँ पर हमने लास्ट में पूछा है तो इसलिए लास्ट में लिख दिया है. Now come to the question number 23. The diagram shows that the pentagon ABCDF, सॉरी ABCDE होना चाहिए, बुक में गलती दे दिया है थोड़ा सा. The diagram shows a pentagon ABCDF inscribed in a circle center O, and given that AB is equal to BC is equal to CD. Means तीन साइड इक्वल है, AB is equal to BC, BC is equal to CD, and ABC is 132 degree. We have to work out, we have to calculate the angle AEB, AED and COD. तीन एंगल के बारे में पूछा है. देखिए आप ABC दिया हुआ है, ABC. अब ये साइड AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD. अब इक्वल कार्ड है तो सेंटर पर इक्वल एंगल सबटेंड करेगा. अब ये रेडियाई इक्वल है तो ये भी 66 होगा, ये भी 132 को 2 इक्वल पार्ट में बांट दीजिए, 132 को 2 इक्वल पार्ट में बांटिए, 66 आएगा. तो 66 ये, 66 ये, और 180 में से 66 प्लस मैंने 132 माइनस कर दीजिए तो कितना मिलेगा, 48 आएगा. मतलब सेंटर पर ए बी सेगमेंट जो है वो 48 डिग्री का एंगल बना. उसी तरह से BC भी 48 बनाएगा, CD भी 48, क्योंकि कार्ड जो है इक्वल कार्ड है. सो ईच card will subtend 48 degree angle at the center. Now you see AB is equal to BC is equal to CD, it is given. We have to calculate that angle AEB. AEB इस एंगल को अगर AEB को ज्वाइन करेंगे तो इसके द्वारा इसी ये एंगल कहाँ पर है, सरकमफ्रेंस पर, और ये एंगल कहाँ पर है, सेंटर में है. यहाँ पर 48 है तो इधर कितना हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा. देखिए इन ट्राइंगल OAB, OAB angle A is 66, angle B is 66, so the angle AOB will be equal to 180 minus 132, that is 48 degree. Hence angle AEB will be equal to 48 divided by 2, that is 24 degree. क्योंकि यहाँ पर 48 है तो यहाँ पर 24 होगा. AED that is 48. अब देखिए यहाँ पर AED बड़ा वाला एंगल लेंगे हम, तो यहाँ पर 48 के कितने बन रहे हैं, 1 2 3, तो 48 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2. 48 इंटू 2 3 क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर तीन एंगल हैं तो 48 48 48. सो 48 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 72 डिग्री. सो एंगल AED will be equal to 72 degree. Now the third part, COD, that is 48 degree. We have to work out COD. ये एंगल बताना है हमारे को, COD that is 48 डिग्री ऑलरेडी वर्कड आउट किया हुआ है. 66 ये, 66 ये, 180 में से 132 माइनस कर दीजिए, 48 डिग्री आएगा. सो इन दिस वे द क्वेश्चन नंबर 23 इज कंप्लीटेड. नाउ प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 24. In the given circle, the diameter AB, with the diameter AB, find the value of x. Find the value of x.
हमारे को x की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए अब ये ए डी सेगमेंट, पहले तो देखिए ए सी बी डी, these are the point, and angle ACD is given, that is 30 degree. So the other angle means in the same segment कौन सा है, AD segment. AD segment के द्वारा दूसरा एंगल कहाँ बन रहा है, B पर, वो कितने डिग्री का हो जाएगा, 30 डिग्री का हो जाएगा। हमारे को वर्कआउट करना है क्या, ये एंगल। अब देखिए यहाँ पर क्या है, AB जो है, ए बी डायामीटर है, ए बी इज द डायामीटर। सो ये वाला एंगल मीन्स ए डी बी, एंगल ए डी बी विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। ए डी बी और बी डी ए दैट विल बी 90 डिग्री बिकॉज द एंगल सबटेंडेड बाय द सेमी सर्किल। दिया हुआ डायामीटर ए बी, ओ इज द सेंटर। सो ए बी को जब ज्वाइन करेंगे तो क्या बनेगा, वो डायामीटर बनेगा। तो ये वाला एंगल हो गया आपका 90 डिग्री, और बी पर कितना हो गया, 30 डिग्री। तो ये कितना डिग्री हो जाएगा आपका, ये और ये एंगल दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मीन्स सम ऑफ दिस टू शुड बी इक्वल टू 90। सो 90 minus 30 that is 60 degree. और here I have mentioned it, angle ACD is equal to ABD, that is 30 degree angle in the same segment. So in this way the question number 24 completed. Now proceed to the question number 25. PQ is the diameter of the circle whose center is O, given the ROS is 42 degree. Calculate RTS. ROS दिया हुआ है, ROS that is 42 degree. This figure is completely given in your book. Now you see, first of all, this segment RS segment के द्वारा एंगल सेंटर पर कितना दिया हुआ है, 42 डिग्री, और इसी RS सेगमेंट के द्वारा Q पर, दैट इज सर्कमफ्रेंस के ऊपर एंगल कितना बनेगा, 42 का हाफ बनेगा, दैट इज 21। अब ये 21 हो गया। अब ये देखिए, ये डायामीटर है, ये डायामीटर है, तो ये कितना, 90 डिग्री का है। डायामीटर सेमी सर्किल के द्वारा, सेमी सर्किल में कितना डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री। तो देखिए PRQ दैट इज 90 डिग्री, और हमारे को इस सेगमेंट के द्वारा, RS सेगमेंट के द्वारा एंगल कितने, सेंटर पर कितना एंगल बना है, 42 डिग्री। अब उसका हाफ बनेगा कहाँ पर, Q पर। सो ये हो गया आपका 42 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 21। अब हमारे को निकालना क्या है, RTS। अब देखिए ये 90 है, तो एंगल R पर दूसरे साइड मीन्स TRQ विल बी आल्सो 90। एक तो 90 हो गया, एक हो गया 21। अब थर्ड एंगल निकालना है राइट एंगल ट्रायंगल में, तो 90 माइनस 21, क्योंकि ये एंगल प्लस ये एंगल 90 होता है, सप्लीमेंट्री एंगल होता है। राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल तो राइट एंगल होता है 90 डिग्री, दूसरे दो एक्यूट एंगल होते हैं, उनको टू एक्यूट एंगल्स आर complementary angles. That is why RTS will be equal to 90 minus 21, that is 69 degree. Now come to the question number 26. In figure, PR is the diameter of the circle, PQ is equal to 7 centimeter, QR is equal to 6 centimeter, and RS is equal to 2 centimeter. Calculate the perimeter of the cyclic quadrilateral PQRS. अब देखिए यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है जिसमें PQRS दिया हुआ है, और ये PR जो है एक डायामीटर है PR, तो ये 7 है और ये 6 है, और यहाँ पर ये 90 डिग्री होगा। क्यों,
क्योंकि ये सेमी सर्कल के द्वारा बना हुआ पी आर जो है डायमीटर है, सो दिस विल बी द एंगल सबटेंडेड बाय द सेमी सर्कल एट द पॉइंट क्यू, दैट विल बी 90 डिग्री। जब ये 90 डिग्री हो गया तो दिस विल बी योर हाइपोटेन्यूज। पाइथागोरस थ्योरम लागू किया, 7 का स्क्वायर किया, 6 का स्क्वायर किया और उन दोनों को सम किया, सम करके इसका स्क्वायर रूट ले लिया। देखिए यहाँ पर पी आर इक्वल टू 7 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर दैट इज रूट 85, रूट ऑफ 85 सेंटीमीटर पी आर हो जाएगा। अब आ जाइए, एक दूसरा ट्राइंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल पी आर एस। अब आपको पी आर मालूम हो गया, पी एस दिया हुआ है, पी आर मालूम हो गया, पी एस दिया हुआ है। हमारे को निकालना क्या है, पी एस। आर एस दिया हुआ, आर एस 2 सेंटीमीटर दिया हुआ, हमें पी एस निकालना है। देखिए अब पी एस विल बी इक्वल टू, अब ये एंगल राइट एंगल के ठीक अपोजिट में ये पी आर है, सो पी आर स्क्वायर माइनस आर एस स्क्वायर। अब पी आर का स्क्वायर करेंगे तो मतलब 85 का रूट 85 है, तो 85 का जो रूट है वो हट जाएगा। पी आर स्क्वायर की जगह पर मैंने क्या लिख दिया, 85 माइनस आर एस स्क्वायर। आर एस स्क्वायर क्या है, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, 4 लिख दिया। 85 माइनस 4 दैट इज रूट 81। 81 का स्क्वायर रूट लिया 9। तो नाउ द पेरीमीटर यू सी, नाउ वी हैव गॉट द 7 6 2 9, 7 6 2 9, इन सभी को प्लस किया 24 सेंटीमीटर आएगा एंड इट विल बी द 24 सेंटीमीटर विल बी द पेरीमीटर ऑफ दिस quadrilateral, that is PQRS. Now come to the question number 27. In figure, AB is equal to AC is equal to CD and ADC is equal to 38 degree. Calculate ABC and BEC, दो एंगल हमें वर्कआउट करना है। देखिए पहले फिगर को समझ लीजिए, ये एक 38 डिग्री दिया हुआ है। अब यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू सी डी। हम एक ट्राइंगल लेंगे, पहले कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ए सी डी ट्राइंगल लेंगे हम, ए सी डी। उस ट्राइंगल में ए सी इज इक्वल टू सी डी, ए सी इज इक्वल टू सी डी गिवन। Hence, if the two sides are equal of a triangle, then the angle opposite to the equal side must be equal. So this it is 38, so it will be also 38. ये 38 हो जाएगा। अब देखिए ACD के लिए एक्सटीरियर एंगल क्या है, ट्राइंगल ACD के लिए एक्सटीरियर एंगल क्या है, ACB। So the exterior angle is always equal to the sum of the interior opposite angle, means 38 plus 38 that is 76, means ACB will be 76 degree. This will be the 76. Now once we have got it is a 76, now come to this triangle ABC. ABC in which AB is equal to AC given and it is 76, so it will be also 76, means B will be also 76, C will be also 76, means in triangle ABC I am talking about the triangle ABC। हमने पहले क्या किया, ACB को निकाल लिया। कैसे निकाला, क्योंकि इसका एक्सटीरियर एंगल है, किसका, ACD का। तो यहाँ पर देखिए ACB जो है ये एक्सटीरियर एंगल है, तो इट विल बी इक्वल टू 38 प्लस 38 76 हो जाएगा। जैसे ये 76 हुआ तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, AB इज इक्वल टू AC गिवन है, सो वंस इट इज 76 दिस विल बी आल्सो 76। क्लियर हुआ यहाँ पर। अब देखिए एक इस सेगमेंट के द्वारा, कौन सा सेगमेंट, CE सेगमेंट के द्वारा एंगल जो ए पर बना है 38 डिग्री है। अब इसी सेगमेंट के द्वारा यहाँ पर एक एंगल बनेगा 38,
बी पर, ये भी 38 हो गया। अब 76 में से 38 माइनस कर दिएंगे तो 38 आएगा। मतलब ये लाइन जो होगा बी ई लाइन, इट विल बी द बाइसेक्टर, दैट इज वाई इट इज 38 38। नाउ वी हैव गॉट द 38 हियर। नाउ एक दूसरा सेगमेंट देखिए, ए ई सेगमेंट। द एंगल सबटेंडेड बाय द ए ई सेगमेंट at B, that is 38 degree. So the angle subtended by the segment AE at C, that will be also 38 degree. ये भी 38 हो गया, ये भी 38 हो गया, ये भी 38 हो गया। अब देखिए इस ट्राइंगल में चलिए हम, बी सी ई, बी सी ई में चलिए, एक ट्राइंगल है बी सी ई। अब यहाँ पर हमारे को पता चल गया कि ये 38 डिग्री है, ये 76 है और ये 38 है। हमारे को ये एंगल निकालना है बी ई सी। तो 38 प्लस 38 प्लस 76, इन तीनों को प्लस करके 180 में से माइनस कर दीजिए, तो आपको ये वाला एंगल 28 डिग्री आ जाएगा। देखिए हमने किया है पूरा। इन ट्राइंगल ए सी डी, ए सी इज इक्वल टू सी डी गिवन, so CAD is equal to ADC, 38 degree. ACB is equal to 38 plus 38, that is 76 degree. Exterior angle of the triangle ACD. Now come to this. AB is equal to AC given है, so ABC will be equal to ACB, 76 degree. It will be answer. Now CBE is equal to CAE, that is 38 degree, that is angle in the same segment. Therefore ABE is equal to 76 minus 38, that is 38 degree. Now come to this, ABE is equal to ACE. ABE is equal to ACE, that is equal to 38 degree, angles in the same segment. In triangle EBC, अब हम चलेंगे ट्राइंगल EBC, एंगल BEC is equal to 180 degree minus 38 plus 76 plus 38, that will be equal to 180 minus 152, that is equal to 28 degree. And this is the third answer of this question. Question number 27 is completed.